प्रोग्रेस। सो ये एक फॉर्मूला रह गया था दिखाने के लिए, पिछले वाले लेक्चर में मैंने किसी से लिखवाया था। वन अपॉन, इस तरह से भी हो सकता है, उस तरह, जिस तरह से तुम लोग को याद रखना है रखो। मुझे आरटी से मतलब है, आरटी फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। इफ यू वांट टू यूज एनी अदर मेथड यू कैन यूज, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस और द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, doesn't matter how many resistance are there in parallel, you can find the equivalent resistance by using this formula. Make a screenshot and ignore. ठीक है, fine, let's come to this problem. Now what is this question asking? अभी यहाँ पे problems आने वाले guys. It will be really helpful if you get your books, pens and your calculators with you and draw these diagrams physically, because draw करने से ज्यादा अच्छी memory बनती है and मुझे वो memory strong चाहिए. Okay, तो potential difference across 3 ohm resistance पूछा है and 6 ohm resistance. मतलब क्या पूछा है? What is asked? क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है? गलत। करंट, अबे करंट नहीं, क्या फाइंड करना है? पीडीएस मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या फाइंड करना है? कहाँ फाइंड करना है? वेयर शुड आई पुट द अननोन? वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। हाँ, कहाँ पे? अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 6 3 ओम। ohm and 6 ohm. So first thing is, what is unknown? How should I write it in the book? V1 और V2 is Exactly. unknown। V1 or V2. Yes, we start by initializing V1 as the potential difference across 3 ohms and V2 as potential difference across 6 ohms. This is our first step, okay, that we draw on the diagram ki what is unknown, V1 and V2. The first thing that we do is this. Are you guys doing from your side? Yes sir। मैं लिख दूंगा V1 and V2. So I have symbolized what is to be asked. Now how can I find V1 and V2? पहले I फाइंड करें। पहले I find कर लेंगे। I का फॉर्मूला क्या है? V V upon R equivalent. R equivalent निकालना पड़ेगा, मतलब पहले R equivalent R equivalent equals to 9 ohm. हाँ, बड़े फास्ट जा रहे हो भाई, तू भी खाना खाते हुए कर। तो पहले हमको Current I is equal फाइंड to करना 2 पड़ेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन RT। ठीक है, तो हमको RT चाहिए, उसके लिए we have V as 18 volts. RT is what? RT is equal to R1 plus R2। R1 plus R2. Instead of R1 plus R2, I'll directly write 3 plus 6 equals to 9. 9 क्या? OHM, ohm. ठीक है, now I can find I is equal to what? Substituting RT in the above equation, 18 upon 9. So answer is 2 एम्पीयर। amperes. ये देखो ओम बोला कोई तो कोई बात नहीं, 2 amperes. So I got my current. ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? V1. What is V1? V1 is equal to I R1। I into R1 R1 मतलब क्या? इक्वल्स टू 2 into 3 is equal to what? 6 वोल्ट। ये तब तुम लोग को अपने बुक में लिखने आसानी होनी चाहिए। ये मैं टाइप कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग टाइम, अदरवाइज मैं ज्यादा फास्ट कर सकता हूँ ना। V2 is equal to I into R2. Question: if I write I2, is this correct or is this wrong? No sir, it will be wrong because current remains the same. No, Current remains नहीं, the same. Good. same. अगर मैंने यहाँ I बोला है सीरीज सर्किट के लिए, तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलूंगा? I ही बोलूंगा। I. ठीक है, I into R2. The value This of is wrong, R2 is
absolutely as it is because it is a series circuit. 12 volts. Any difficulties यहाँ तक? No, sir. हाँ, if you add V1 and V2, No, sir. मुझे क्या मिलेगा? Total voltage. Total Total potential voltage. difference. Is it correct? 12 plus 6 is Yes, 18. sir. So our Yes, sir. answers are completely up to the mark, cross verified. ये सब लिखना है बच्चा, अपने बुक में लिखना होता है, ठीक है? The total current of the circuit is given by, ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद में I आता है, फिर टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, फिर ये आता है फॉर्मूला, फिर उसके बाद वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम इज V1 फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V2 फॉर्मूला, एंड देन सब्स्टिट्यूशन. This is how your solution is supposed to look when you write a paper. Okay. Second question. Calculate the currents I, I2 and I3. Now, any difficulties in this diagram? No, sir. No. स्क्रीन अपडेट क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन ही है अभी तक. नहीं सेकंड है सर. हाँ, मेरे पे फर्स्ट है. अबे, कैसे हो सकता है बे? आवाज तो क्लियर सर हो सकता है उसका नेट स्लो आ रहा हो. अच्छा ठीक है ठीक है. Okay, fine. The problem number 2 is shown on your screen. There is a difficulty on that question. What is it? Read the question. Sir, current I2 and I3. Is there a current I3 in the diagram shown? No, No, sir. sir. तो क्या गलत हो सकता लेकिन है यहाँ सर पे? I3 अगर फ्लो करेगा तो साइमल्टेनियसली I हो जाएगा ना सर. I1 I2 हाँ, I1 नहीं दिया इसमें. एग्जैक्टली इसमें पूछने में उन लोगों ने एक चीज गलती करी है, I1 नहीं पूछा है, ठीक है? I पूछा, I2 पूछा एंड I3 बोल दिया. I3 जो है ही नहीं. तो यहाँ पर तुम लोग अपना लॉजिकल थिंकिंग लेंगे और बोलेंगे I3 तो है ही नहीं, बट I1 तो है ना, तो उसका मतलब शायद से I1 I2 I3 रहेगा. सॉरी, I1 I2 रहेगा. गलती से उसने I3 बोल दिया. So logically you will substitute this as I1 because there is no I3 in the circuit. All right. Hello. ये ऐसा होता है. Questions do get confused क्योंकि तुम लोग को ऐसा लगता है कि I3 दिया है, पूछा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस. भाई अटेम्प्ट करो, फुल मार्क्स मिलेंगे घंटा. Because the first line of engineering is assume suitable data. So what is the suitable data here? I1 and I2 are the two currents that is splitting into the branches. So the question is now calculate I1 and I2. हाँ, अब मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक हुआ. हेलो 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 टैंगो चार्ली हेलो. Yes. Hello. हाँ सर आए आप. हाँ वापस आ गया. मैं आ गया वाह, मैं आ गया वापस. करण अर्जुन. ओके, तो what I was saying is assume suitable data as per the engineering quote is, and this question will be I2 and I1. Okay, so now let us start with finding the currents I1 and I2. How do we proceed? The first step would be what? R equivalent निकालेंगे sir. R equivalent. R equivalent. क्यों निकाल रहे हो R equivalent? नहीं, R I के लिए, equivalent total I के डायरेक्टली लिए. फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कौन सा अगर formula? I1 पहले निकालेंगे तो V equals to I1 R1. मेरे को एक टाइम पे बोलो क्या हो रहा है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं. कोई बोला RT Sir, R निकालेंगे. equivalent निकालेंगे पहले. R equivalent क्यों निकाल रहे हैं? सर टोटल I मिलेगा ना उससे. तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं. द टोटल करंट इज गिवन बाय V अपॉन R T. पहला फॉर्मूला आया फॉर करंट I. फिर हम लोग स्टार्ट किए RT निकालने का. रीजन होना चाहिए भाई, ऐसे ही उठ के थोड़ी ना होता है. RT इज इक्वल टू, बताओ सीधा आंसर मेरे को. R1 1 upon R1 plus 1. सर RT इनवर्स. हाँ, सीधा RT बताओ मेरे को कितना है. 2 आ रहा है सर. 2 2 आ रहा है सर. 2 आ रहा है या
Two right answer Two is ohms. ohms. 2 Okay. ohms. RT is 2 ohms. Those who have not got RT, guys, please solve this resistor and this value of resistor parallelly using your calculators. अगर फिर किसी को नहीं आ रहा है तो आज शाम में जो लेक्चर होगा उसमें पूछा जाएगा. ओके, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यू अगेन. अभी मैं नहीं करूंगा. फिर RT मिल गया मेरे को. नाउ व्हाट डू आई डू? आई फाइंड I is equal to V कितना है? 18 upon 2. So the answer is 9 ampere. 9 ampere. Good one. I मिल गया मेरे को. अब क्या करूं मैं? और अभी I1 अभी I1. So I1 क्या उस है? रजिस्टर में करंट निकालेंगे. हाँ, I1 क्या फॉर्मूला क्या है? I1 is equal to V upon R1. पक्का? V upon R1, V into R1 नहीं आएगा? V upon R1 है. पक्का ना? Yes. हाँ तो बोल ना पक्का. इतना लेट क्यों करता है? पक्का जी. हाँ, ओम्स लॉ थोड़ी ना चेंज होने वाला है. मैं कुछ भी बोलूं. So the answer is 7. 6 ohm. 6 ohm. 6 ओहम बराबर है ना? 6 ओम बराबर है क्या क्लास? एम्पियर. 6 ohm. Yes sir. 6 ओम. अभी भी 6 ohm. ampere. Sorry sir. ठीक है. Okay, I2 is equal to what? I is equal to I1 plus I2. अबे I2 बोला मैंने. I2. सर I2 V equals upon to R2. V V upon upon R2. There are two methods to solve get I2. एक है V upon R2. दूसरा है I equals to I1 plus I2. तुमको जो अच्छा लगता है वो यूज करो. I don't have a problem. What I want is I2. I2 is 3 ampere. 3 amperes. सबको आ रहा है ये चीज? हाँ सर. Any difficulties solving this problem? Easy होना चाहिए सबके लिए. Simple circuits है. Okay. Now this circuit. प्लीज सब लोग अपने डायग्राम को अच्छे से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन सर में हमें क्या? एग्जाम में क्वेश्चन के साथ डायग्राम दिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया होगा. देयर विल बी क्वेश्चन जिसमें डायग्राम होता ही नहीं है. एंड देयर आर क्वेश्चंस जो कि है ना 7 लाइंस के होते हैं, जो रीड करते करते ही 1 मिनट लगता है. वो इसी सर्किट्स में भी आने वाले हैं. सो यू बी प्रिपेयर्ड. ऐसा कुछ सोच के मत बैठो कि डायग्राम मिलेगा. अभी डायग्राम है तो है, बाद में नहीं भी हो सकता है. ओके. हेलो हेलो. यूटी में भी नहीं? यूटी में नहीं होगा बच्चा. यूटी में थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्टिव को नहीं करूंगा परेशान, बट एमसीक्यू में परेशान करूंगा. तो एमसीक्यू में तो चॉइस दिया हुआ है ना. टेंशन क्या है. ओके. ओके. यस. नाउ बैक टू द प्रॉब्लम. दिस इज द सर्किट गिवन. नाउ प्लीज लुक एट द सर्किट केयरफुली फॉर 5 सेकेंड्स. पहला लाइन क्या बोला गया है वो एक बार देख लो. The question refers to the circuit below in which the current is 100 milliamperes. The small m stands for milli and the letter A stands for amperes. Okay. If this letter was big, यानी कि capital letter होता तो मैं बोलता था उसको mega. Yes. Now it is small, then we are going to call it as milliamperes. Okay. किसको बोल रहा है वो करंट? यहाँ पर कहाँ है 100 मिली एम्पियर्स लिखने के लिए? मैं यहाँ लिखूं Yes sir. यस या सर. यहाँ लिखूं? Yes sir. किधर भी लिखो ना. नहीं सर, एग्जैक्टली. एम्पियर की यहाँ पे भी लिख सकता किधर भी हूँ, लिखो ना. यहाँ भी लिख सकता हूँ, बिकॉज करंट बैटरी से Ammeter भी जा लिखो. रहा है और करंट बैटरी में Yes, आ रहा है. सो इन बोथ द केसेस आई कैन राइट द करंट इज 100 मिली एम्पियर्स. ओके. नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज दिस. व्हाट इज 100 मिली एम्पियर्स इन एम्पियर्स? 0.1. ओके. 100 माइक्रो एम्पियर्स कितना होएगा? जरा 0.
मतलब 10⁻⁻⁴। हाँ सर 100 into 10⁻³ मिली एम्पियर हो गया। ओके फाइन, रुक जा। आई एम आस्किंग फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जिनको समझ गया है उन लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाओ, ठीक है? व्हाट इज 100 मिली एम्पियर्स इन एम्पियर्स, इसका मतलब किसको नहीं समझ में आया? एनीवन? सर मुझे नहीं समझा। ओके, सर अच्छा मुझे नहीं देखो, गो टू योर कैलकुलेटर्स, 100 लिखो यहाँ पर और मिली बोला ना। व्हेन आई से मिली, मिली का जो यूनिट होता है इट इज 10⁻⁻3। प्लीज राइट इन योर कैलकुलेटर्स, राइट 100 और यहाँ पर देखो आंसर के बाजू में एक बटन है, प्रेस दैट, इट विल शो इनटू 10⁻⁻3। when you press equal to, it will show you something like this, 1/10। दिखा रहे कि नहीं? हम लोग को क्या चाहिए? यस सर। रियल नंबर चाहिए डेसिमल में, तो व्हाट डू वी डू इज शिफ्ट इक्वल्स टू, so 0.1, so 100 milliamperes looks like 0.1 amperes। Understood? यस सर। ठीक है, so write it down in your book how to find, ठीक है? यानी कि this is 0.1 amperes। हाँ, अब जो क्वेश्चन पूछा गया था तो दो स्टूडेंट्स who understood well कि 100 माइक्रो एम्पियर्स, उन लोग बताएंगे 100 माइक्रो एम्पियर्स कैसे निकालूंगा मैं? 10⁻⁻⁴ into 10⁻⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ करेंगे। 6 किया, 100 into 10⁻⁻⁶. इक्वल किया, तो ये आ गया कुछ। इफ आई प्रेस दिस बटन, अभी मेरे को फिर से क्या दिखा रहा है? 1 into 10⁻⁻⁴। नाउ हाउ डू आई गेट द वैल्यू? जैसा 0.1 आया वैसा ये भी चाहिए, कैसे लाऊंगा मैं? 0.001 S = D। SD दबा के, क्या दबाऊं? S = D है ना? SD उधर ये दिया है वाला? कॉस के नीचे। हाँ, ये आया, वापस से दबा। एले 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 एले, ये भी है, ये ले। छोड़ो ना सर, जान दो। अबे नहीं, छोड़ नहीं सकते। सर गलती हो तुम गई लोग सर। को आंसर जिस वे में पूछा, यू कैन नॉट राइट 1 into 10⁻⁻⁴ amperes, no, that is a wrong answer। you have to do this, 0.001 ampere। 100 milliamperes in amperes is 0.001। क्या क्लिक किया सर आपने? हाँ, गुड। शिफ्ट और ENG। हाँ गाइस देखो, तुमको क्वेश्चन पूछा है उस जबान में आंसर देनी पड़ती है, ठीक है? वापस से मैं ला देता हूँ, e⁻⁻⁻⁶ ये आ गया था आंसर, SD किया तो भी आंसर सेम ही रह रहा है। सो व्हाट डू आई डू इज शिफ्ट इंजीनियरिंग, ENG। सो मेरा एक कम हुआ यहाँ पे, दिख रहा है क्या? फिर से मैं एक करता हूँ शिफ्ट सर यस सर। engineering, so it is now 0.001 and 10⁻⁻�0। so this is my current in amperes and this is my current in microamperes। समझा? यस 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 सर। Okay, moving forward, what is the current in each resistor? 100 100 milliamp। मिली एम्पियर और milliampere। 0.1 एम्पियर। 0.1 amp। you can write anyways, 100 milliamperes भी बोलो या 0.1 amperes भी बोलो, both are the right answers only। so current in each resistor, why the current in each resistor is 100? As all Series में resistors सर, are series arranged में in आए Yes, सेम you रहता है। have to write, since all the resistors are connected in series, the current in each resistor is 100 milliamperes or 0.1 amperes। okay, what is the battery voltage? V1 plus Last पे V2 जाते plus हैं। V3। राइट, लास्ट वाले पे जा रहा हूं, बीच के दो तुम लोग होमवर्क कर लेना। बैटरी वोल्टेज इज V equals to V1 plus V2 plus V3 बराबर ना? गेट मी Yes, द sir। वैल्यूज ऑफ V1 Yes, V2 sir। एंड V3। 3 4 5। बहुत फास्ट है तू, नाम क्या है तेरा? रजा? यस सर 3 4 5। तो हाँ, अच्छा ओके, 3 + 4 + 5, सांस तो लेने का बे, सांस भी सर नहीं ने वो ले रहा। 0.1 है ना, तो हाँ सब 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। ना, बराबर है, सही है।
गुड गुड, आई डिडंट मीन एनीथिंग, ओके। तो 3 + 4 5, कितना आंसर है भाई? 11 12 12 is the right answer. 12 volts. 12 volts is the right answer. 12 volts. Okay, what is the battery voltage? The battery voltage is 12 volts. For those who are still getting V1, V2 and V3, it's okay. Go by your methodology of finding the answer. Don't go by shortcuts. जिसको आता है उसको मुबारक, तुम लोग अपने खुद के shortcuts बना लेना, okay? So this is, ये total resistance तुम लोग निकाल सकते हो, voltage across each resistor भी find कर सकते हो. Homework. Now good. Can you see this circuit? Yes, sir. Yes. So मुझे बताओ what is the single resistor equivalent? What is the question? What is first वाला क्या पूछ रहा है? To find, Single resistance. मतलब क्या? Single resistor दोनों का equivalent क्या होता है? सीरीज और पैरेलल में ना, हाँ, उनको दोनों का इक्विवेलेंट लेना है, मिला के लेना है। एग्जैक्टली। मतलब मुझे सर्किट का RT चाहिए। I want to find सर्किट का RT, टोटल RT। Perfect. RT. I want a girl to answer this formula. What is RT? What is the formula for RT? Girls, step up, please. Say a wrong formula. It will be fine. But attempt. R1 inverse plus R2 inverse. जरा अच्छे से बोलो, मैं यहाँ पे लिखने वाला जो बोलने वाले हो। नहीं, someone else. R1 inverse plus और R1 INV लिख देता हूँ मैं तब अभी के लिए। इनवर्स plus R2 inverse. प्लस R2 इनवर्स और एक भी रेजिस्टर ना बच्चा, प्लीज उसको भी कंसीडर करो। सर ओके, बट वो हाँ बोलो, बट वो प्लीज कंप्लीट वो इट। पैरेलल में नहीं है ना। एग्जैक्टली, वो पैरेलल में नहीं है, तो पैरेलल के लिए मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। आई विल मेक अ ब्रैकेट, और ये आंसर जो भी आएगा उसका क्या निकालना होता है? इनवर्स। इनवर्स। ठीक है, अब क्या करूँ, ये रेजिस्टर जो आया है, अब क्या करूँ? थर्ड रेजिस्टर का क्या करेंगे यहाँ पे आगे? +6, मतलब वो जो थर्ड रेजिस्टर प्लस R3। परफेक्ट है फॉर्मूला, एंड तुम्हारा डाउट भी सही है, वो पैरेलल में नहीं है। सो द फॉर्मूला गोज एज दिस। ना जिसने भी बोला है R1 क्या वैल्यू है तुम्हारी? R1 किसको, R1 क्या है? 4 ohm. ओके, R2 क्या 4 है? 8 8 ohm. R3 is 6. So get me the final value of RT. 6.37. 6.375 OHM। सबको सेम आंसर आ रहा है या किसी एक को अलग भी आ रहा है? सेम है सर। नहीं सर, सर 8.66 सर है। 8.6 आ रहा है आंसर। 8.66। 8.66। लेट मी ऑल्सो डू इट, एंड प्लीज जिन लोग को नहीं आया है या जिन लोग को डाउट है अपने आंसर पे, कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। पहले 4 और 8 इनवर्स को, पहले 4 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स, जो आंसर आया उसका इनवर्स, एंड फिर प्लस क्या करूंगा मैं? 6। 8.667 is the right answer. यस सर। गाइस, जिन लोग ने भी 6.375 बोला है, प्लीज रीडू द क्वेश्चन कैलकुलस। 8 पॉइंट कितना करे? 667, 8.667 OHM, जीरो दिख रहा है। Guys, do you want me to solve it on the calculator again? नो सर। यस सर, एक बार बता दो ना सर। एक और बार, ठीक है। 4
इनवर्स प्लस 8 इनवर्स। ये दोनों क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। जो आंसर आया उसको मैं आंख बंद करके इनवर्स, तो ये आंसर आया। अभी आंसर जहां पे है वहां पे रखा हुआ है, मुझे क्या करना है उसमें एडिशन करना है, +6। अभी कुछ आंसर आया, मुझे उसको क्या करना है, डेसिमल करना है, 8.667। ओके, so this is Yes. my RT, which is nothing but single resistor equivalent। तो अब मुझे बताओ टोटल करंट कितना है? 1.38 एम्पियर। 1.38 amperes। बहुत फास्ट खेलते हो। 1.38 एम्प्स। ओके, फिर क्या है? वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम बताओ कितना है? V at 6 ohm is, हाँ भाई, 8.28 8.28। कैसे निकाला तूने? V1 is equal to I total into 6। टोटल इंटू 6, टोटल करंट इंटू 6 किया तूने, 8.28 आया वोल्ट। नेक्स्ट क्या है? करंट इन ईच रेजिस्टर। पहला रेजिस्टर मैं बोलता हूँ 6 ओम्स का, उसके अंदर क्या करंट है? 1.38 1.3। 1.38। हाँ, लेट अस कम डाउन टू 8 ओम्स। 8 ओम्स के अंदर कितना करंट है? तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ, तो मतलब सर उधर 4 ओम डिवाइड में हो अलग जाएगा रहेगा। करंट। हाँ, तो 4 ओम फॉर्मूला में बताओ अलग, 8 भाई। ओम में अलग। हाँ, फॉर्मूला बताओ। I1 is I1 equal to is equals to V upon R1 and V2 I2 equals upon to V by R2। R2। V अपॉन R 8 लिख देता हूँ, V सर अपॉन आप रिपीट करोगे क्या? थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है इधर आज। ओके ओके। देख भाई, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जवाब तो तुम लोग ही दे रहे हो, ठीक है? करंट, टोटल करंट निकाला आफ्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद, हमने टोटल करंट निकाला। ऑलराइट, फिर क्या बोला? वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम्स। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम्स? V इज इक्वल टू I इंटू R। व्हाट इज I? I इज टोटल करंट, 1.38 इंटू R इंटू 6 इज नथिंग बट 8.28। अगर कैलकुलेटर में किया तो तेरे को मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। द डिफिकल्टी स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट। करंट इन 8 ओम्स, करंट इन 8 ओम इज V अपॉन 8। व्हाट इज दिस V? कैन इट बी सप्लाई वोल्टेज? सर 12 volts। नहीं हो सकता ना बच्चा। हाउ कैन इट बी सप्लाई वोल्टेज? यस सर। व्हाट इज दिस V? द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ द क्लास। करंट इन 8 ओम्स निकाल रहा हूं मैं अभी। एवरीवन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम 8 रहेगा, ओम। पैरेलल में है ना। रुक सर जा, सेम रुक जा, रहेगा, रुक पैरेलल जा, में हाँ है ना। रुक जा रुक जा रुक जा। पहले सबको क्वेश्चन समझ जाने दो, मैं उसके बाद सॉल्यूशन देता हूँ। करंट इन 8 ओम्स निकाला जा रहा है, ठीक है? I इन 8 ओम्स बाय फॉर्मूला ऑफ ओम्स, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, व्हाट इज R? वी नो 8 ओम्स। व्हाट इज V? ठीक है, नाउ सी, V जो है इस ब्रांच और इस ब्रांच के बीच में है V1। प्लीज लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली। और V जो है इस ब्रांच और इस ब्रांच, अरे कहाँ गया? Shit, man, I'm gonna lose it। ये और ये ब्रांच में द वोल्टेज इज V2। सर ने ऐसा क्यों लिखा? नाउ जो सर बोल रहे थे इतनी देर से कि सप्लाई वोल्टेज जितना है वही वोल्टेज रहेगा ना सारों के बीच में। बट गाइस डू टेल मी, इज द सप्लाई डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस दिस एंड दिस टर्मिनल? नो सर। No. No, the supply is connected between this resistance which is in series with this structural resistance। तो अब सीरीज आ गया, सीरीज आया में तो वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है डिफरेंस। है ना?
सीरीज में डिफरेंट होता है। अगर तुम इसको दो रेजिस्टेंस की जगह ऐसे एक रेजिस्टेंस देखोगे, वन रेजिस्टेंस, तो आर दीज टू रेजिस्टेंस, सॉरी, आर दीज टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज? यस सर। यस। Yes, अगर सीरीज में है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्या? नहीं सर, डिफरेंट नहीं होगा। सर, अलग डिफरेंट हो। होगा। एंड एज वी हैव कैलकुलेटेड V2, कितना है V2? 8.28, 8.6 8.28, तो V1 कितना हो जाएगा भाई? 3.72। Now you 3.7 understand? यस Yes सर। sir. So current in 8 ohms is V1, जिसका वैल्यू तुम लोग निकालोगे फ्रॉम द फॉर्मूला V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. I hope everyone is understanding this part. I don't mean to confuse you with anything, but you have to understand this कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैं I2 क्यों लिखा भाई? मुझे क्या चाहिए था? V1 equals to V minus V2 V2 which is equal to what? 12 minus 12 8.28. minus 8.28, which is nothing but 3 point, कितना था भाई? 3.7. 3.72. Oh, 72 volts. So अब ये मैं 3.72 V1 सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ, क्या आएगा आंसर बताओ भाई? 0.46. 0.465 0.465 0.465 क्या? amperes. एम्पियर्स। गुड। तो करंट इन 4 ohms भी बता ही सकते हो? 1.075 एम्पियर। 1.075 एम्पियर्स। सबको समझ में आया? हेलो 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 हेलो। yes, sir. यस सर। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्लीज Yes, राइट इन sir. योर बुक्स, इट इज वेरी क्रूशियल। ऐसे अभी अपन ने देखा उधर V1 और V2 को डिस्ट्रीब्यूट किए, हाँ मतलब वो लिखे कैसे, मतलब बोलने का कि वो अलग एक रेजिस्टर है, वो एक नहीं, रेजिस्टर ठीक है। है, तो यहाँ पे आएगा ना करंट इन 8 ohm रेजिस्टेंस इज V1 लिख दिया, तो यहाँ पर हम तूने जस्टिफाई कर दिया कि वोल्टेज इज डिवाइडेड है। एंड जब तूने वोल्टेज इज डिवाइडेड बोल दिया ना, तो ऑटोमेटिकली तूने आइडेंटिफाई कर लिया कि दो सीरीज में है, सर्किट का कनेक्शन जो है। उसको मतलब बताने का नहीं ना, नहीं specify नहीं करके। नहीं नहीं, ऐसा ये जो मार्किंग किया मैंने V1 V2, हाँ ये करना पड़ेगा ना तेरे को, V1 V2 लिखना पड़ेगा ऐसा अच्छा, arrow mark। डायग्राम में लिखे। तो भाई अगर मैं तेरे को समझा नहीं सकता हूँ तो तू मुझे कैसे सोल्यूशन लिख के दे सकता है ना? लिखना पड़ेगा ना तेरे को, ड्रॉ कर दे, इजी पीजी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सच ए Okay, बिग बिग स्टेटमेंट्स, यू जस्ट ड्रॉ ऑन द डायग्राम, जैसे मैंने तेरे को समझाने के लिए ड्रॉ किया। ओके, यू Okay, कैन मेक योर डायग्राम एज डर्टी एज पॉसिबल, इट डजंट, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। ओके, बस डायग्राम पे Okay, काटा sir. कुटी नहीं करना। Current across 4 ohms 0.93 आ रहा है। Yes, sir. कौन है ये? 0.93 एम्पियर, ये क्योंकि सर टोटल भी करेंगे तो 1.38 फिर आता है। हाँ तो ठीक है भाई। करंट अक्रॉस 4 ohms इज V1 0.93 0.93 बाय 4। बाय 4। हाँ तो बताओ, जो है वो है V1 अपना 3.72 है, यस, 3.72 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4, 4 कितना आता है? 0.93 0.93। जो कैलकुलेटर बोला वही सही भाई। एम्पियर। हाँ तो सब्स्टिट्यूट सही से करो, V1 को सब्स्टिट्यूट बराबर से करना, किसी ने कुछ और किया रहेगा। 3.72 डिवाइड बाय 4 इज 0.93, परफेक्ट आंसर है। पॉइंट है कि तुमको ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझा। समझा सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो तो अच्छा होगा। Okay, बच्चा, I will not explain you the first two. I will directly explain you the third and fourth. चलेगा क्या? ओके सर। Okay. सर फर्स्ट और सेकंड में तो इजी है ना, कुछ नहीं है इसके लिए। थर्ड और फोर्थ जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm पूछा, इट वाज वेरी इजी फॉर यू
ये सीधे सीधे यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, ठीक है। V अक्रॉस 6 ओम्स बोला, यहाँ पे मैंने सिर्फ V अक्रॉस 6 ओम्स बोला, मैंने V1 V2 कुछ नहीं लिखा था, जस्ट फॉर द सेक कि तुमको समझे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या आ रहा है। V at 6 ohms is what? 12 volts into I. कहाँ गया? 12 into 1.38. V is equal to what? IR ना? नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ सर, B equals to बराबर है। IR. हाँ, V equals to IR. I कितना है मेरा? 1.38 स्टार 6, ये फिर जाएगा equals to 8.28. Okay, this is easy. Now the next part is find the current in each resistor. Current in this resistor 4 ohms and current in this resistor 8 ohms. I is equal to what? V upon R. ये फॉर्मूला है। R तो मेंशन्ड है क्वेश्चन में ही। अगर मैं बोलूं 4 ohms का देखना है तो R is 4, अगर मैं 8 ohms का देख रहा हूं तो R is 8. Okay, but what is V1? That is the question. अब तुमको यहाँ पे समझना होता है कि सर्किट है ना इज डिवाइडेड इनटू 2 pieces. The first piece is a resistor, simple one resistor, and the second piece is a combination of resistors connected in parallel. अगर ये combination को देखा जाए तो it is looking like 2 resistors in series. अब जब 2 resistors in series दिख रहा है तो हमारा फंडा ही वो है कि वोल्टेज जो है डिवाइड होता है। some voltage will be taken in this resistance, some voltage will be taken in this resistance. Since इस resistance को मैंने बोल दिया V2, इसको मैं बोलूंगा क्या? V1. Alright, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। एंड नाउ अगर मैं V1 बोल चुका हूं तो हाउ डू आई फाइंड V1? V1 is found by this formula. V is equal to V1 plus V2. Now I know what is V. I know what is V2. I substitute V minus V2. Then you get 12 minus 8.28. I get V1. V1 is equal to what? 3.72. अब मुझे V1 मिल चुका है, ठीक है। अब मेरे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। 8 ohms में क्या है? V1 upon 8. 4 ohms में क्या है? V1 upon 4. Ohm's law. The only thing understanding was V1 and V2 resistance are in series. This resistance with this resistance block. Okay. ओके सर। अबे जिसने डाउट पूछी उसको ओके बोलना है। ओके सर। यस, तू भी बोला, अच्छी बात है, थैंक यू मैन। हाँ, वही क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है। यस, समवन वाज आस्किंग कि सर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि नहीं। मुबारक हो, आ गया। ये क्वेश्चन 5, 6 है, ये क्वेश्चन है। ओके, लेट अस डू दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। एवरीवन प्लीज ड्रॉ दिस क्वेश्चन इन योर बुक। Please draw the question in your book. The first step of your solution is drawing the diagram. If you draw it nicely, if you draw it correctly, your answer is visible to you. So there are two resistors, 6 ohms and 12 ohms, arranged in parallel. A potential difference is connected across the terminal X and Y. The current in 6 ohm resistor is 4 amperes. What is the total current of the circuit? सबने ड्रॉ किए? यस सर। X और Y पॉइंट किया। तुम्हारे डायग्राम में X एंड Y इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 6 और 12 का पैरेलल कनेक्शन तो मैं लगा ही लूंगा। तुम लोग को टर्मिनल्स देने हैं X और Y।
जिसने ये सही से दिया ना उसका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, द डायग्राम लुक्स समथिंग लाइक दिस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट राइट? अगर ये x को Yes. तुमने यहाँ की जगह यहाँ पे भी किया है ना पॉइंट तो भी चलेगा। यहाँ पे x और यहाँ पे y, इसको तुमने वर्टिकली ड्रॉ किया है तो भी चलेगा। 6 और 12 को आजू बाजू में वर्टिकली। For those who have got it wrong, get it corrected. The important part of this question, टोटल आई 6 है। ये देख यहाँ पर है ना क्या दिया है, देख लाइन में, the current in 6 ohm resistor is 4 amperes. This is a crucial thing. You have to mark an arrow of current या तो going out from 6 ohms या तो going inside 6 ohms, और यहाँ पर लिखना है तुम लोग को 4 amperes. Now this marks the complete drawing of your question. X and Y, very crucial. It identifies that you know the question, and 4 amperes is the correctness of the diagram. जिसने ये नहीं किया ना 4 amperes मेंशन डायग्राम में, उसका मैं फुल डाउट में रखता हूँ कि हाँ भाई इसने तो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया ही रहेगा। एंड आई मतलब मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ उसके ऊपर। जिसने ये डायग्राम में सही से ड्रॉ कर देना, मैं तो उसका आंसर देखूंगा भी नहीं, फुल मार्क्स दूंगा और चले जाऊंगा। नेक्स्ट पेज। Okay, so the now question is, what is the total current of the circuit? What is the total current of the 6 circuit by formula? 6 एम्पीयर। हाँ भाई फॉर्मूला के वाइज बताना। I is equal to what? I1 plus I2। Okay. V by R। अच्छा मतलब V बाय। रुक जा। हाँ सर, V बाय I is equal to V by R, ये भी होता है। और उस ये भाई ने बोला है इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये भी होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूलास होते हैं फॉर फाइंडिंग I. Okay, let's take both the formulas in consideration. Do you have I1 and I2 to finding the I1 है current? I1 है, सर, I2 नहीं है। I1 है। तो I2 निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है? I2 is equal to V upon R2। हाँ, तो तेरे पास R2 है, I2 नहीं है, V2 भी नहीं है। V2 भी है सर। V2 कहाँ से है तेरे पास? वो पहला फॉर्मूला निकालेंगे ना वोल्टेज। कहाँ निकाला तूने, मेरे को बता ना कैसे निकाला। V is equal to what? V is equal to IR, I1 into R1। हाँ, अब बराबर से बोला। V is equal to I1 into R1। ठीक है, what is I1? 4 एम्पीयर। 4 amperes 4 amperes into 6, right? 6 is equal to what? 24 volts। So ये है मेरा V आया। ठीक है, अब बताओ मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा या ये फॉर्मूला यूज करूंगा फाइंडिंग द टोटल करंट? सर, I कौन सा भी यूज equals करो सर। सर कोई भी यूज कर पहले सकते। I2 निकालो। कौन सा भी करो। ओके, नाउ लेट अस R इक्विवेलेंट भी निकाल सकते सर वैसे आप तो। फिर वही R इक्विवेलेंट करते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? R इनवर्स प्लस R2 इनवर्स। हाँ, 6 इनवर्स प्लस 12 इनवर्स, दैट इज R1 इनवर्स प्लस R2 इनवर्स उसका हाँ। इनवर्स। हाँ बराबर, ठीक है। मैं वो लिख नहीं सकता ना रे, वन फॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू राइट, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। R इक्विवेलेंट इज 4 ohms, सो द टोटल 4 करंट ohm I is equal to what? V upon सर, V upon R 8। V कितना है? 24 डिवाइड बाय 4। 4 6 ohm 6 amperes। 6 एम्पीयर। 8 कौन बोला था रे? 6 सर, गलती से मुझे 6 बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। 6 amperes. So the right answer MCQ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज व्हाट? 6 एम्पीयर। 6 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी बराबर। B। ऑप्शन यस बी। B।
Yes, so this will be a kind of MCQ जो तुमको दिया जाएगा, ओके? ठीक है, मैं बोला ना MCQs रहेंगे तुम्हारे पेपर में, वो कुछ इस तरह के होंगे। Okay, sir. Okay, yes. Now try solving these problems. एक मिनट रुक जाओ, और क्या है मेरे पास? नहीं, बराबर है, ये लास्ट है मेरा स्लाइड। What is the time? 2:53. Take the screenshot of the two questions. हमारा पैरेलल सर्किटरी यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है? नाउ वी विल गो इन द नेक्स्ट लेक्चर टू केवीएल, ओके? सो अब तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि पैरेलल एंड सीरीज को लेके क्या होता है। The first and the foremost thing is drawing the question. The battery in the circuit has an EMF. What do you mean by EMF? Potential difference. Potential difference. V, voltage is what? 6.0 volts. मतलब कितना वोल्ट? 6 6 volt. volts. And negligible resistance, इसका क्या मतलब होता है? Resistance है ही नहीं. Resistance नेग्लिजिबल बोलना है ही मतलब नहीं, छोड़ो ना negligible यार। मतलब consider. Right. So the voltage given in the circuit is 6 volts. If two resistors R1 and R2 with so and so resistance are connected in parallel, while resistance R3 with 8 ohm is connected in series. Now can you draw this diagram with a reference Yes, that we sir. have used in the previous problem? Yes, sir. Then tell me the combined resistance. किसको ये क्वेश्चन ड्रॉ करने नहीं आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड मतलब आवाज करो। अबे रेज्ड हैंड ईमान। सॉरी मैन, इट वाज मैं ऐसा रेज योर हैंड मतलब बोलना होता है। बच्चे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, वन रेजिस्टेंस इन सीरीज, टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दिस इज द सेम क्वेश्चन. It has two resistance in series, sorry, two resistance in parallel with a resistance R3 in series. Absolutely same question as per the diagrammatic समझ system. गए सर, बस माशाल्लाह. Combined resistance बताओ जल्दी जल्दी. So पहले का 12 आंसर और दूसरे का 0.75 12 क्या है ये? ओहम. Ohms. Okay. ओम. Ohm. Fine. और दूसरा कितना बोला भाई करंट R3 में? 0.75. 0.75. नाम बता तेरा? तो हाँ, तो हाँ बच्चा, अपने बुक का है ना, फोटोग्राफ मार और ग्रुप पे ये फोटो डाल अभी के अभी। ये जो प्रॉब्लम तूने सॉल्व किया ना, उसको फोटोग्राफ कर और ग्रुप पे डाल, ठीक है? ओके सर. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 resistors are connected in parallel to a battery and the battery has a current 3. The first resistor is rated 20, the second is 40. Find the total resistance. चलो सुपर फास्ट कौन आंसर देगा ये? टोटल रेजिस्टेंस RT. जल्दी जल्दी RT. 38 है सर. हाँ 8 ओहम. ohms. ओके. अब बताओ थर्ड रेजिस्टर कैसे मिलेगा? How do you find the resistance R3? सर 5/3. अबे 5/3 को तू मेरे को फ्रैक्शन में बोल, हाँ सॉरी डेसिमल में बोल. 5/3 is what? 3 1.66. 1.667. 66. कैसे निकाला ये जरा बता मेरे को. सर पहले R टोटल इज इक्वल टू, हाँ R आया, फिर मतलब R है मतलब 1/R. इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. R2 plus R3 वैसी सर. हाँ वैसे ही करके निकाला. हाँ सर. बता मुझे क्या करूं मैं यहाँ पे? हाउ डिड यू फाइंड? कैलकुलेटर में बता. RT इनवर्स RT इनवर्स मतलब 8 का इनवर्स. 8 Total 8 inverse. 8 इनवर्स इज इक्वल टू 20 इनवर्स प्लस 40 इनवर्स. अबे इज इक्वल टू लिखूं? रोल मेथड यूज करेंगे ना.
इज इक्वल टू लिखूं क्या मैं कैलकुलेटर में? कैसे लिखूं इज इक्वल टू? फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे। नहीं सर, वो होता है कैल से सॉल्व होता है वो। L3 हाँ तो मेरे को अल्फा बताओ ना कैल कैसे होता है। हाँ अल्फा सर दबाओ इक्वल्स टू लिखो कैल, हाँ ऐसा कैल, बोलो ना, हाँ। अल्फा कैल। हाँ फिर 20 इनवर्स 18 इनवर्स 20 इनवर्स प्लस 50 इनवर्स प्लस एक्स इनवर्स इनवर्स प्लस 40 इनवर्स 40 इनवर्स प्लस एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स एक्स कहाँ पे मेरा? अल्फा अल्फा ब्रैकेट क्लोज अल्फा और ब्रैकेट क्लोज उसका इनवर्स। इनवर्स। अभी क्या बटन दबाओ? अभी सर इसके आगे नहीं मालूम हमारे को। सर शिफ्ट और सॉल्व दबाओ अभी। शिफ्ट और सॉल्व। Shift और सॉल्व कहाँ पे है? सॉल्व मतलब कैल के ऊपर जो है ना। हाँ हाँ हाँ। फिर इक्वल्स टू सर करो, सर ने वैसे बताए थे। इक्वल टू दबाओ यहाँ पे। हाँ सर। बाजूला ट्राय कंपनीच्या बाजूला तिला फ्रेम आयडी पाहिजे एक्स इक्वल्स टू 20 आ रहा है। x equals to 20. Is this the right answer? 20 अब्बू ने मला एक्सप्लेन करी आता था त्याची मम्मी करायला लागले दाखव. Is this the right answer? RT, R3. यस सर. हैं? मम्मी कैसा दिसते सर? तो फिर यहाँ पे किसी ने 1.66 बोल दिया भाई। बाकी ठेवले एक कार्ड दो. ओके तो गाइस, मैं फिलहाल तुम्हारे इसमें जा रहा हूँ वापस चैट विंडो में। चैट विंडो में आई एम पोस्टिंग द अटेंडेंस लिंक, मार्क योर अटेंडेंस अगेन। दूसरी चीज, आज रात में 9 बजे जो लेक्चर होगा वी विल स्टार्ट विद दिस, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड रेजिस्टर। Please try to find the right value of resistance. I will not give you the right value. एक जन ने बोला है 20, किसी ने बोला है 1. Try to find it and we will solve it in the evening. We will start the lecture from this part. Okay? All सर right? हाँ बोलो। अगले लेक्चर में थोड़ा धीरे सिखाना सर, समझ नहीं आ रहा है। हाँ बच्चे, तुम कहाँ से वीक हो गए हो? कहाँ सर से weak लिंक चल रहा है? ओपन नहीं हो रही है वो। यू कैन फिल दिस फॉर्म ओनली वंस लिखा है। तो हो चुका है ना. एक मिनट रुक जा भाई। हाँ जिसने भर दिया उसने भर दिया भाई, बार बार थोड़ी भरेगा तू, एक ही बार भरेगा ना। हाँ बच्चा, तो कौन बोल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है? मैं सर बहुत मैं फास्ट जा रहा हूँ करके, कहाँ से तुमको नहीं समझ में आया है वो बताओ। स्टार्टिंग. अरे माँ कसम, पनिशमेंट देगा क्या अभी तुम्हें को? सर एक बार मैं सर्किट वगैरह कैसे ड्रॉ करते वो फिर से बताओ शाम में। ओके, सर्किट वगैरह हाँ, ड्रॉ करते हैं। सर ओके फाइन वो गाइस, मैं क्वेश्चंस के हाँ बोल। स्क्रीनशॉट लेने को दो ना जरा। क्वेश्चंस इन द इवनिंग टाइम हम लोग, मैं अपना कैमरा रखूंगा मेरे बुक के ऊपर एंड आई विल ड्रॉ द डायग्राम्स। ट्राई हाँ टू सर उसमें बताओ. हाँ सर चलेगा। ठीक है, क्योंकि अब सर, मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वैसे करता हूँ शाम में जो लेक्चर होगा 9 o'clock का उसमें करेंगे। ओके एंड तब तक के लिए इसके ऊपर ध्यान दो। फाइंड द रेजिस्टेंस। नाउ यू नो RT का वैल्यू, यू हैव 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2। नाउ फाइंड द रेजिस्टर R3। ये चीज के ऊपर थोड़ा मेहनत करो, ठीक है? यूज दिस स्क्रीनशॉट इफ नीडेड। कौन सा वाला? ये वाला RT का वैल्यू है तुम्हारे पास, R1 का वैल्यू है तुम्हारे पास, R2 का वैल्यू है। तुमको क्या निकालना है? R3। just get me the answer. Use this formula, is completely up to you. All right? ओके Okay guys, thank you very much for your time. We'll meet at 9 o'clock. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. Welcome. Bye bye. सर इसका PDF दो ना। अबे शाम में हो जान दे, देता हूँ। और तब तक तो हाँ, तेरे को बोला है फोटो डालने के लिए, डाला तूने? नहीं सर। ओए क्या कर रहे हैं सर मिस्टर डाल दो, तोहा? उसे सॉल्व कर लो हाँ अच्छे से, एलईडी सॉल्व कर। हाँ ठीक है पूरा पतला एकदम ओके रफ किया था ना। हाँ चलेगा फेयर करके भेज। ओके, जॉइन द नेक्स्ट लेक्चर ओके गाइस। सर, या बाय। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।